زندہ کے منہ میں اگر تنکا گر جائے تو اس کو چین اسی وقت آتا ہے جب اسے باہر نکال دے۔ ہزاروں لقموں میں ایک چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کی حس نے اس کا پتہ لگا لیا۔ دنیا کا احساس اس جہان کی سیڑھی ہے اور روح کا احساس آسمان کی سیڑھی ہے۔ اس حس کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو اور اس حس کی تندرستی محبوب سے معلوم کرو۔ اس حس کی تندرستی بدن کی تندرستی ہے اور اس حس کی تندرستی بدن کی شکستگی ہے۔ روح کی راہ پہلے جسم کو ویران کرتی ہے اور اس ویرانی کے بعد وہ اس کو آباد کرتا ہے۔ سونے کے خزانے کے لیے اس نے گھر کو ویران کیا اور اسی خزانے سے پھر اس کو آباد کرتا ہے۔ اس نے پانی بند کیا اور نہر کو پاک کیا، پھر اس نے نہر میں پینے کا پانی چھوڑ دیا۔ کھال میں شگاف کیا اور تیر کو باہر کیا، اس کے بعد ہی نئی کھال اس سے پیدا ہوئی۔ اس نے قلعہ ویران کیا اور کافر سے چھینا، اس کے بعد اس پر سینکڑوں برج اور فصیلیں بنائیں۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار اور ان کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی وضاحت کی طرف۔ جسے تم زندگی کہتے ہو اس کو سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ صوفی کہتا ہے الرٹ رہو، زندگی الرٹنس ہے۔ تم کبھی سوچتے ہو کہ زندگی میں جتنا وقت تم سوئے ہوئے گزارتے ہو وہ وقت تمہارے دماغ میں کوئی میموری، کوئی یادیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ تم مینٹلی الرٹ نہیں ہوتے۔ صوفی جسے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں وہ ہے الرٹنس، روح کی الرٹنس۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ رومی اسی مثنوی میں ہی ایک جگہ کہتے ہیں صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، اس پل کا بیٹا۔ اس پل میں موجود زندگی کے زیر و بم کے ساتھ دھڑکنا ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔ اس پل میں زندگی کے ساتھ جب تم دھڑک جاتے ہو اسی وقت ہی تو تم زندہ ہوتے ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو زندہ وہ ہے کہ جو الرٹ ہے، جو ہر پل اسی پل میں کامل طور پر موجود ہے۔ اسی الرٹنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے کوئی شخص زندہ ہو اور اس کے منہ میں کوئی تنکا چلا جائے، کوئی بال چلا جائے تو کیسے اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک اس تنکے کو اگل نہ دے۔ تم دیکھتے ہو کہ کوئی پرندہ، کوئی جانور مردہ پڑا ہو تو چونٹیاں اس کے منہ میں رینگ رہی ہوتی ہیں مگر وہ انہیں جھٹک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ مردہ ہے، زندگی کے ساتھ، بینگ کے ساتھ اس کا جسم کٹ چکا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ گناہ یا برائی صرف اسی سے ہو سکتے ہیں جو الرٹ نہیں ہے، جو سویا ہوا ہے۔ جاگے ہوئے سے برائی یا گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جاگا ہوا ایک تنکا بھی اپنے منہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو برائی اور گناہ کی آگ کو وہ کیوں برداشت کرے گا؟ جسم زندہ ہو تو تنکا تک نہیں نگلا جاتا اور روح زندہ ہو تو برائی کا تنکا تک برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے گناہ یا برائی ہوتی ہے، کوئی غصہ یا لالچ کرتا ہے، کوئی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی روح مردہ ہے، بس جسم زندہ ہے۔ جیسے زندہ جسم ایک تنکا تک نہیں نکل سکتا، اسی طرح زندہ روح بھی برائی کا ایک تنکا تک برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا، برائی سے، گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو گناہوں سے اجتناب، برائی سے فرار کی ضرورت نہیں ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ تم جاگ گئے تو گناہ کا تنکا کبھی تم سے نگلا نہیں جائے گا۔ صوفیوں اور مولویوں کا بنیادی فرق یہی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔
मौलवी कहता है ये करो ये ना करो, इससे बचो इसको करो, ये सोचो ये खाओ। दूसरी तरफ सूफियों का तरीका ये है, वो कहते हैं कि बस जाग जाओ, सिर्फ जाग जाओ, भटकने का कोई चांस ही नहीं, जागा हुआ कभी नहीं भटकता। सूफी जिस मंजिल के लिए चलता है उसका नाम है एनलाइटनमेंट, रूहानी बेदारी। वो रूह को बदलने, उसे टेम करने, उसे मोड़ने, उसे अपने मुताबिक बनाने, आदतों को पक्का करने की बात नहीं करता। सूफी कहता है रूह जाग जाए, तुम में जो हस्ती है, तुम में जो बीइंग है, तुम में जो खुदा है, वो बेदार हो जाए। मौलाना रूमी अगले शेर में कहते हैं कि तुमने देखा कि कोई जिंदा हो तो हजारों लुकमों में एक तिनका भी पहचान लेता है। जिंदा आदमी में वो हिस्स होती है, वो सेंसेशन होती है जो उस तिनके को पहचान लेती है। इसी तरह जिंदा रूह में भी वो हिस्स होती है जो पहचान लेती है कि क्या गुनाह है क्या गुनाह नहीं है। जिस तरह जागे जिस्म से तिनका नहीं निकला जाता, इसी तरह जागी रूह से गुनाह नहीं होता। इसके बाद मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जिस्म और रूह में फर्क क्या है। तुम अगर जिस्म की सतह पर बेदार हो जाते हो तो ग़िज़ा एहतियात से इस्तेमाल करते हो, रहने को घर अच्छे और साफ सुथरे बनाते हो, पानी साफ पीते हो, नहाने धोने का ख्याल करते हो, वर्जिश करते हो। ये जिंदा जिस्म की सेंसिटिविटी है, ये जिंदा जिस्म की हिस्से हैं जो काम कर रही हैं। दुनिया का एहसास इस जहान की सीढ़ी है, लेकिन अगर तुम्हारी रूह बेदार हो जाए तो ये आसमान की सीढ़ी है। तुम खुदा की तरफ इशारा करते हो तो ऊपर की तरफ देखते हो। रूह भी जब बेदार होती है तो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जिस्म जमीन से आया था, जूं बढ़ता है, फैलता है, मिटता है, मट्टी के और करीब होता जाता है, यहाँ तक कि इंसान दफन होकर मट्टी में मट्टी हो जाता है। लेकिन रूह जब फैलती है, बड़ी होती है, वसी होती है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है और ये मुकम्मल बेदार हो जाए तो उस वक्त इंसान नारा लगाता है, अनल हक। रूह का माखज़ है फलक की वुसअतें, गैर महदूद खला, बेअंत गुंजाइश, स्पेस। जिस्म का माखज़ है ज़मीन, इसलिए जिस्म ज़मीन की तरफ चलता है, सफ़र करता है, और रूह आसमानों की तरफ उठती जाती है। अगले शेर में मौलाना रूमी कहते हैं कि जिस्म की तंदुरुस्ती हकीम, तबीब, डॉक्टर से पूछो, और रूह की सेहत के बारे में पूछना हो तो महबूब से पूछो। आपने नोट किया होगा कि सूफी अपने लिए जो टाइटल पसंद करता है वो है आशिक का टाइटल। किसका आशिक? अल्टीमेट रियलिटी का, खुदा का, होने का, बीइंग का, हस्ती का। सूफी खुदा को महबूब करार देता है और खुद को आशिक। और इंसान जिस भी चीज से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता उस जैसा होता जाता है। सूफियों की जिंदगी में क्यों ये मकाम आता है कि जहां वो पुकार उठते हैं कि अनल हक? क्योंकि वो महबूब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दो की दीवारें मिट जाती हैं, दुई खत्म हो जाती है, मनोतो का झगड़ा मिट जाता है। सिर्फ एक हकीकत बाकी बच रहती है, एक जिंदा हकीकत, ला मौजूद इल्लल्लाह। याद रखो, समंदर हो के एक कतरा, अपनी बुनियादी फितरत में दोनों एक जैसे हैं, दोनों के पानी होने में कोई शक नहीं। इश्क कतरे की वो हालत है कि जिसमें वो ये देख लेता है कि मैं और समंदर एक ही हकीकत का बयान है। हाँ, मगर कतरे को इस हकीकत का अदराक पाने के लिए कतरे होने की अपनी शनाख्त को मिटाना पड़ता है, समंदर होना पड़ता है, महबूब में जम होना पड़ता है। और इसी हकीकत को मौलाना रूमी अपने अगले शेर में यूं बयान करते हैं कि जिस्म की हिस्से तंदुरुस्त हों तो बदन दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है, और रूह की हिस्सों की तंदुरुस्ती ये है कि बदन टूट फूट जाए, शिकस्ता हो जाए।
समंदर रह जाए, कतरे की बाहरी बाउंड्री सारी फना हो जाए। वो बाउंड्री जब तक मौजूद है जो कतरे को कतरा बना रही है, तब तक वो कतरा समंदर नहीं हो सकता। समंदर होने के लिए कतरे को अपनी बाउंड्री तोड़नी ही पड़ती है। मौलाना रूमी कहते हैं कि रूह की राह पर जो सालिक चल पड़ता है तो पहले उसका जिस्म वीरान होता है और फिर उसी वीरानी से वो एक नई तामीर करता है। तुम किसी भी सूफी को उठाकर देखो, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें अपने जिस्म की परवाह ही नहीं रह गई थी। इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने जिस्म से नफरत करते थे। इसको इस अंदाज से समझने की कोशिश करो, जब तुम खेत में कोई सब्जी, कोई फसल उगाना चाहते हो जिससे तुम्हारा बाग, तुम्हारा खेत लहरा उठे, तो उसके लिए क्या करते हो? उस बाग, उस खेत की सारी मिट्टी को, सारी जमीन को उठेड़ देते हो, उसमें हल चलाते हो, उसमें गोडी करते हो और उसके बाद फिर फसल बोते हो। तो वही जमीन जिसको तुमने चटियल कर दिया था वो कैसे हरी भरी हो जाती है। मौलाना रूमी कहते हैं कि रूह की राह का मुसाफिर भी बिल्कुल यही काम करता है। वो जिस्म की उन हिस्सों को कमज़ोर करता है जो उसे ज़मीन से जोड़ती हैं और फिर उसमें ज़्यादा आसमान, ज़्यादा स्पेस बोता है, उसको नए सिरे से आबाद करता है। जैसे तुम खेत से पहले जड़ी बूटियाँ, घास फूस निकालने के लिए हल चलाते हो, गोडी करते हो ताकि उसमें कोई कारआमद फसल बो सको, सूफी भी इसी तरह पहले जिस्म की झाड़ झंकाड़ को मिटाता है, उसमें हल चलाता है। वो जंगल जंगल घूमता है, सहरा सहरा भटकता है, पागलों की तरह कभी रक्स करता है, कभी रात रात जाग कर रियासतें करता है। जब उसके जिस्म की ज़मीन तैयार हो जाती है तो फिर वो इसे नए सिरे से नई शक्ल में तराशता है। वो शक्ल के जिस्म महबूब और आशिक के दरमियान फासला कम से कम हो जाए। सूफियों के सारे कष्ट, सारी रियासतें इसी मकसद के लिए होते हैं। नादान लोग क्या करते हैं, वो सूफियों की इन्हीं रियासतों को कॉपी करने लगते हैं, लेकिन वो उस जौहर से महरूम रहते हैं। जैसे कोई शख्स किसी किसान को देखे वो हल चला रहा है, गोडी कर रहा है और वो भी जाकर अपनी ज़मीन खोदना शुरू कर दे, मगर ये ना जानता हो कि इसमें बीजना भी होता है। सूफियों की रियासतें कॉपी हो जाती हैं मगर उनकी फसलें कभी कॉपी नहीं होती। इसलिए तुम देखते हो कि सूफियों जैसी हरकतें करते तुम्हें आज भी हज़ारों लोग मिल जाएंगे, मगर वो सूफी ना होंगे। सूफी जिस्म को वीरान करता है ताकि उससे नए ढंग से आबाद कर सके। जैसे किसी के हाथ खजाना लग गया हो और वो उस खजाने को घर में भरने के लिए घर में पहले से पड़े काठ कबार को बाहर निकाल दे। जैसे नहर में पीने का साफ पानी छोड़ना हो तो पहले उसे पुराने मैले पानी से खाली करना पड़ेगा। जैसे जिल्द में कांटा चुभ जाए तो उसको निकालने के लिए कांटे के इर्द गिर्द की जिल्द को खोदना पड़ता है, या जिस्म में तीर खुब जाए तो उसको निकालने के लिए जिल्द की जर्राही कर दी जाती है ताकि नई जिल्द उग सके। जैसे कोई मोमिन फातेह काफरों के किले फतह करे और उन्हें ताख्त व ताराज कर दे ताकि उसके बाद उस शहर में सैकड़ों बुर्ज, मीनारे और फसीलें बना सके। सूफी की सारी रियासतें जिस्म को ताराज करती तुम्हें नजर आ सकती हैं, लेकिन वो बस खेत में हल चला रहा है, वो घर को तामीर कर रहा है, वो घर के जिसमें उसके महबूब का इस्तकबाल हो सके।